Okay, so today I have to discuss on NMR. Okay, mostly I concert about NMR. Why? Because there must be so many questions that should become from organic spectroscopy, especially from NMR. Okay, if you consider IR, NMR, UV, that is most important is NMR. 1H NMR, 13 carbon NMR. And along with sometimes fluorine, 19 fluorine, phosphorus, 31 phosphorus, that should become, but that is the portion from inorganic chemistry. Okay, and very little bit that should become. Mostly we more emphasize on 1H NMR and 13 carbon NMR. Okay, because most, and there must be another reason is behind of it, that is most of the people they fear about NMR. Okay, maybe they can correct the, they choose the correct option of IR spectroscopy based upon on stretching frequency. They may, some people also more or less choose the correct option of UV visible also, by the concept of the transition sigma to sigma star, pi to pi star, Batochrome shift, hypsochrome shift. But most of the people fear about NMR. Okay, and basically the identification of organic compound based on NMR or 1H NMR or 13 carbon NMR data. Okay, so there must be, always remember, in 4 marks question or 2 marks question, there should be always given the any type of that type of question where the data that should be given from 1H NMR, maybe sometimes 13 carbon NMR, maybe sometimes given IR data. You have to find out which compound is suggested. Okay, so on that portion most of the people skip this question. Okay, so that's why I have to more emphasize on 1H NMR and 13 carbon NMR, because IR data not always be acceptable in the 1H NMR, because sometimes the IR data is given only for confusing you. Okay, so that's why you have to more focus on 1H NMR, but sometimes also one IR data help you, guide you along with it, because some values are fixed, like C triple bond N value. Okay, C triple bond C value, these are fixed. Okay, so now I have to start with it. Okay, तो जो आपका CSR नेट होता है, वहाँ पर क्या होता है, UV विजिबल NMR होता है, राइट, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में. तो ये बात याद रखना, मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट होता है वो UV विजिबल का जो क्वेश्चन होता है ज़्यादातर अटेंड करता है, क्योंकि वहाँ पर बैथोगोमी शिफ्ट, हिप्सोगोमी शिफ्ट, N to N, पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, जो ऐसा वाला क्वेश्चन होता है वो इजीली थ्योरी बेस्ड होता है, तो ज़्यादातर लोग बाई कॉन्सेप्ट दे कैन अटेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर. ठीक है, और IR में जो होता है इंफ्रारेड, वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी. अगर आपका आप ये जान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जॉइंट ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या इफेक्ट करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथन करता है या बॉन्ड वीकेंड करता है, तो उससे आप बहुत सारा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो. ऐसे कि आपका जो वैल्यूज़ है वो भी कभी कभी आपको याद भी नहीं करना पड़ता है. ठीक है, आप अगर कीटोन का वैल्यू याद रखो कि 1700 to 1725 हो, तो आपका क्लोरीन जब कार्बोनिल के साथ जुड़ा होकर रहेगा, तो ऑब्वियसली क्लोरीन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा कार्बोनिल को, राइट. तो ऐसे ऐसे आप बहुत सारा क्वेश्चन अटेंड भी कर सकते हो. पर 1H NMR और 13 कार्बन NMR में क्या होता है, ज़्यादातर कैंडिडेट फेयर करता है, मतलब वो डरता है कि ये ऐसा क्वेश्चन वो अटेंड नहीं कर स्किप करके चल जाता है. ठीक है, बहुत सारा डेटा दे रखा होता है 1H NMR का, और वो डेटा देखकर ही जो दिमाग है वो घूम जाता है. ठीक है, तो इसलिए NMR को ज़्यादा एम्फसाइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप NMR का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेंड कर लो, तो ऐसे हो सकता है आपका 10 मार्क्स बाहर से आ जाए. ठीक है, तो नाउ आई हैव टू स्टार्ट विथ इट. ओके, in the broadband decoupled 13 carbon NMR. To point out, there must be decoupled 13 carbon NMR. That means the hydrogen never be considered. Okay, and the number of the signal appearing of the bicyclooctane. अगर आप देख लो यहाँ पर कितना सारा, फर्स्ट एक बात याद रखना, 13 कार्बन NMR का जो क्वेश्चन होता है डीकपल वाला, वहाँ पर आपका 2 सिनारियो हो सकता है. एक हो सकता है जहाँ पर आपका टोटल 13 कार्बन NMR कितना, टोटल 13 कार्बन है
वो आपको देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड देयर इक्विवेलेंसी, कितना सारा नॉन इक्विवेलेंट कितना सारा नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है, और वहाँ पर वो हाइड्रोजन का जो अटैचमेंट है वो इग्नोर करके आप सिर्फ टोटल नंबर ऑफ कार्बन का ही नॉन इक्विवेलेंट कार्बन का सिग्नल आप प्रेडिक्ट करोगे और उसके ऊपर आप क्या डिपेंड होकर आप आंसर करेक्ट करोगे। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है, कभी कभी क्या होता है आपका 13 कार्बन एनएमआर डिकपल बोलकर आपको कौन सा 13 कार्बन का सिग्नल चाह रहा है जहाँ पर कोई हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है। ठीक है, तो दो टाइप का क्वेश्चन है। जो लास्ट जो क्वेश्चन पैटर्न है अप टू 2011 to 2024, तो देयर मस्ट बी द आंसर की इज ओरिएंटेड इन दिस टू सिनेरियो। Okay, so you have to more focus on option when decoupled 13 carbon NMR is given. Okay, clear? And always remember in NMR when you have to choose, that is how many non-equivalent protons are there, how many non-equivalent carbon 13 or carbon is there, and their respective signals, you have to first think about that is plane of symmetry is present or not. बिकॉज ई प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो दो रिफ्लेक्टेड कार्बन हो या दो रिफ्लेक्टेड प्रोटॉन हो, दे गिव सेम सिग्नल. द रिफ्लेक्टेड प्रोटॉन्स और रिफ्लेक्टेड कार्बन्स गिव द सेम सिग्नल, दे आर इक्विवेलेंट. ओके, क्लियर. So the first compound A, there must be this way plane of symmetry is present. Okay, PO is present. So this carbon and this carbon are equivalent. Okay, there also plane of symmetry is there. So this and this, they are equivalent, right? These four are equivalent and these two are equivalent, because if you consider this plane of symmetry, these two are equivalent. ठीक है, बोल सकते हो. तो आपका और भी दो कार्बन है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर है, तो टोटल ऑफ 3. तो यहाँ पर आपका डिकपल बोलकर आपका ऐसा कार्बन नहीं चुना है. आप देख लो सब जगह में 3 है या 5 है, मतलब उससे कम नहीं है. हाइस्ट कार्बन नंबर इन ए compound is 3, right? If you consider the non-equivalent, but there the option with respect to A is not given below less than 3. So that means there all the carbons are considered. Okay, clear? आपका यहाँ पर क्या हुआ है, हाइस्ट नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन 3 है, यहाँ पर ऑप्शन में 3 है या 5 है, मतलब आपका 3 से कम नहीं कंसिडर किया, ऐसा कार्बन नहीं कंसिडर किया जहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है. अगर ऐसा होता कि आपका 3 हो या 1 हो, तब आपको और भी बाकी 2 ऑप्शन देखना पड़ेगा. अगर आपका ऑप्शन में 3 नहीं हो, 1 हो और 0 हो, तो तब आपका 1 करेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑन दैट सिनेरियो, ऑन द रेस्पेक्ट ऑन ऑप्शन, दे आर कंसिडर द कार्बन विच हैविंग नो हाइड्रोजन, दैट मीन्स डिकपल. ये भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो. तो ज़्यादातर आप कंसिडर करोगे कितना सारा कार्बन है. अगर आप ऐसा जानना चाहते हो कहीं पर अगर 3 है और कहीं पर 1 है, दोनों सिनेरियो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपके ऊपर ये याद रखना, तब आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको देखना है और कितना सारा नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है, उसका सिग्नल ही आपको कंसिडर करना है, बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट है. ठीक है, डिकपल मतलब तो हाइड्रोजन जितना सारा कार्बन है उतना सारा ही कार्बन रहेगा, सिर्फ उसके साथ जो जो हाइड्रोजन है उसको हम निगलेक्ट करेंगे, इसका मतलब ही डिकपलिंग होता है. ठीक है, तब क्या होता है, कार्बन का जो इंटेंसिटी पहले जैसा होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है. यही थ्योरी है, बैकग्राउंड थ्योरी यही है. डिकपल मतलब क्या है, ज़्यादातर क्या होता है, कार्बन का तो रेस्पेक्टिव सिग्नल ही होता है, राइट. पर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर और भी बहुत सारा 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन रहता है, तो वो क्या करेगा, एनएमआर को कॉम्प्लेक्स करेगा. तो इसके लिए हम कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो हम कंसिडर नहीं करते. ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड होता है. ठीक है, ये अच्छा वाला और मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होता है. पर कुछ ऑप्शन में आप ऐसा नहीं, अगर नहीं हो, अगर वहाँ पर आपका नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन से कम ऑप्शन में हो, तब आपको ऐसा कार्बन देखना पड़ेगा. अच्छा, देख ही लेते हैं कौन सा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, तब आपका दूसरा मेथड अप्लाई होगा.
ठीक है, तो ये बात याद रखना, यहाँ पर 3 टाइप्स का नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है और यहाँ पर ऑप्शन बी होगा या फिर डी होगा। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो देखोगे यहाँ पर बहुत सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगा। ठीक है, इतना सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगा कि आपका क्या होगा, यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का सेम होगा। एक कार्बन दोनों एक होगा, 2 ए होगा 3, 3 नहीं होगा, रुको, आपको यह बात रखना, ए जो 6 होगा वो एक ही होगा। आप यहाँ से सोच लो, आपका जो कहाँ पर करूँ, नहीं हो रहा है। अब हो रहा होगा, ये देख लो, ऐसा ऐसा। आप यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तब क्या होगा, आपका ए वाला और ए वाला एक होगा, ए वाला एक होगा, तो ए बी और ए वाला सी, तो यहाँ से क्या हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है, राइट। पर आप ये भी देख लो, यहाँ से भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगा। ठीक है, और ये भी देख लो, यहाँ पर भी डी है एक, यहाँ पर भी एक कार्बन है, डी है, यहाँ से आप बोल सकते हो 4 है, राइट। पर यहाँ पर आप देख लो, ये जो ए वाला यही ए होगा, ए वाला यही ए होगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, तो यहाँ से क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर से कर लो, आप यहाँ से किया, आप इसको C3 भी मान सकते हो। ठीक है, C3 से घूम सकता है, तो आप इसको भी इक्विवेलेंसी में ले सकते हो। कैसे, आप एंगल चेंज कर लो, यहाँ से यहाँ आप रोटेट के जैसा आप बन सकते हो, इसको हम C3 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आपका ए वाला कार्बन सेम दिखाएगा। ठीक है, और अलग दिखाएगा ए वाला कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से आपका टोटल सिग्नल क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। देयर शुड बी 2 सिग्नल्स आर कम, तो ऑप्शन 2 इज देयर। देयर आल्सो 2 इज देयर। नाउ नेक्स्ट वन, इन दैट compound no symmetry is present. You can there must be one plane of symmetry is present. This, so this carbon and this carbon similar, right? That is A. This carbon B and this carbon B. Okay, this is B, this is B. Okay, next one, this is C, this carbon, and last वाला जो है ये जो D है, तो यहाँ पर कितना सारा होगा, यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर भी एक जगह और एक कार्बन है, तो ये 5 होगा, तो ये 5 है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3, 2, 5। ओके, क्लियर, आप देख लो।
अच्छा, यहाँ पर ऐसे कहाँ पर दिखाते, ऐसे ऐसे देख लो, नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप देख लो। ठीक ठीक इस जगह में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये जो कार्बन है ये एक होगा, दूसरा क्या होगा, एक कार्बन, दोनों एक होगा। तीसरा क्या होगा, एक कार्बन, यहाँ पर शायद ऐसा है, एक कार्बन होगा, राइट। कितना हुआ, 3 हुआ, 4 होगा, और एक होगा यहाँ पर 5 हुआ 5। ओके, आई थिंक दैट इज ओके। Next one, the major part of X form in the following reaction exhibited a strong absorption at, that is 1765 centimeter inverse in the IR spectrum. Always remember this is goes to gamma lacton. This is goes to gamma lacton. Okay, because 1700 that is for ketone. Okay, that is ketone. कीटोन का जो वैल्यू होता है वो 1700 के आसपास होता है, ये भी 1700 होगा। कीटोन एल्डिहाइड, देखो कीटोन एल्डिहाइड और आपका एसिड, ये दोनों का, ये तीनों का वैल्यू 1700 से 1725 या 50 की ओर होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये भी 1700 होगा, ये भी 1700 होगा। सिर्फ आपका कौन सा वाला नहीं हो सकता, इसका, क्योंकि इसका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पीएच का भी -R और -I इफेक्ट है, इसलिए ये एक बात है। दूसरा, आप रिएक्शन कर सकते हो कि पीसीसी जब रिएक्शन करेगा वो हर वक्त याद रखना, पीसीसी ऑलवेज रिएक्ट फर्स्ट ऑन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अल्कोहल। अगर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो 1 डिग्री में ऑक्सीडेशन करेगा, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हो तो 2 डिग्री में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए है 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर ए है 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या करेगा, एल्डिहाइड करेगा, उसके बाद ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर रिएक्ट करेगा, तो ऐसा कंपाउंड होगा। पीसीसी क्या करेगा, ये जो और एक फ्री अल्कोहल है यहाँ पर, यहाँ पर जो फ्री अल्कोहल है उसको भी कीटोन में कन्वर्ट करेगा, तो लैक्टोन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, ओके, नेक्स्ट। Next question, 13 carbon NMR spectrum of DMSO. DMSO means dimethyl sulfoxide, but there must be D6 is there. That means all the hydrogens are deuterated. This. Always remember, in 1H NMR we have to consider for polar compound, we have to consider for polar solvent and non-polar compound, non-polar solvent. तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो सॉल्वेंट होगा, अगर एसीटोन हो या डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हो, वहाँ पर तो प्रोटोन है, तो उसका भी तो NMR आएगा ना। if you use solvent for dissolve your organic compound for NMR detection, so this solvent if having hydrogen, this hydrogen also gives signal and this signal also incorporate in the graph. So this also make confusion about your organic compounds which is made or not, and how the type of organic compound which is produced. Suppose your organic compound is unknown, or maybe your organic compound is known, but you have to make sure about that, that is your required product is produced. But if your solvent having so many protons, so these protons also interfere on this graph, give the signal, right?
So on that case, if you having complexity to understand that is your compound is correctly produced or not, or your compound is defined or not, right? So on that case, we have to only one solution, that is all the protons should be deuterated. So on that case, in 1H NMR, this deuterated signal never become. Okay, that's why we have to deuterated all the hydrogen. So there must be gives a signal of 39.7. Okay, gives a signal, you have to only consider that is 2Ni plus 1. So this deuterium, how many deuteriums are present? 6 deuterium, but they are equivalent 3 deuterium because there must be plane of symmetry is there. ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके मतलब दो ड्यूटेरियम, तीनों ड्यूटेरियम, तीन सेट ऑफ जो D3 है, तीन सेट ऑफ ड्यूटेरियम सेम सिग्नल दिखाएगा. तो देयर मस्ट बी n इक्वल टू 3 होगा और i का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा. तो 2Ni प्लस 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 3, यहाँ पर एक 1 भी होगा. तो 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 होगा. तो ऑप्शन सेप्टेट इज द करेक्ट आंसर. ओके. तो आपका सिर्फ ये बात रखना, हाँ सल्फर का एक लोन पेयर है, इसके बाद भी आपका ये एकाइडल कंपाउंड है. तो दो जो सेट है CD3 एक ही सिग्नल दिखाएगा, तो इसलिए n इक्वल टू 3 होगा. एंड ड्यूटेरियम के लिए i इक्वल टू 1 होता है. तो 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 क्या होगा? 7 होगा. तो सेप्टेट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. An organic compound having molecular formula C16H14 exhibit in the following 1H and 13 carbon NMR. See, there are so many 1H NMR data is there. So I think there must be a problem is there. Remember, there must be one doublet and one doublet is there. If there is, consider here one proton, here one proton, here one proton, here one proton. So this also give doublet and this is also give doublet, and that should be doublet of doublet can be found. But there is no doublet of doublet is there. That is, this proton is doublet of doublet. But this is not found. So option A is incorrect. Next one, this is option B. There also remember this proton give doublet of doublet. Because they are one proton, they are one proton, so obviously that is give doublet of doublet, but doublet of doublet is not given. So option B is incorrect. Here remember this proton should be doublet, this is also doublet, this is also doublet, this is also doublet, but remember that this is also give doublet, this is doublet, one proton, that is give singlet, right? Okay, their proton numbers are not given, right? So more or less this C and D option may be correct. I think there must be in the question that is some wrong is there. Hydrogens, number of hydrogens should be given. Okay. Okay. I will see this question later. Okay. There are hydrogen, number of hydrogen that should be given. You can see that is in 13 carbon NMR values are there, but 13 carbon NMR value देखकर आप question approach करना is very tough. Okay, I will never prefer. There should be high number of hydrogens is should be there. Okay, this is not given in the question. This is a mistake. Okay, I will check this later. Okay, give me some time. I will check it later. Next question. Question number 4. Appropriate 1H NMR chemical shift for the protons AD. Okay. Remember that OCH3 को always be 3.9 ppm. आपका जो OCH2 होगा उसका वैल्यू होता है 4 से 4.5 ppm होता है, ठीक है. और OCH3 जो होगा उसका वैल्यू 3.5 से 4 होगा, ठीक है. 3.5 से 4 ppm होता है, और ये 3.9 ppm ऑलमोस्ट गोज टू 4 ppm, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर OCH2 दैट मीन्स 4 to 4.5 ppm. OCH3 that is always to be 3.5 to 4.0 ppm. So D should be 3.9 ppm.
Okay, and CSC, if having no electroid group, that is the range should be 2 point something to 3.0. Okay, so that should be this this proton C should be 2.1. जो CH3 होता है, अगर CH3 के साथ कोई क्लोरीन फ्लोरीन अटैच हो तब आपका केमिकल शिफ्ट 4 को एक्सिट कर सकता है. ठीक है, अगर सिर्फ CH3 हो, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी होना क्यों, अगर आपका सिर्फ CH3 हो तो तब याद रखना उसका वैल्यू मोर और लेस 2.0 से 3 में रहेगा. ठीक है, तो 2.1 आपका C का होगा, प्रोटॉन C. अब ये बात याद रखो कि CH3 प्लस साइज के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर देगा और डबल बॉन्ड थोड़ा बहुत शिफ्ट होकर यहाँ पर आ सकता है. तो ये जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा शील्डेड है. ज़्यादा शील्डेड है मतलब इसका वैल्यू लो होगा. ये प्रोटॉन ए का वैल्यू लो होगा प्रोटॉन बी से. तो यहाँ पर प्रोटॉन ए का वैल्यू प्रोटॉन बी से ज़्यादा है, तो ये तो नहीं होगा. तो प्रोटॉन ए का वैल्यू प्रोटॉन बी से कम है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आपका जब भी करोगे, कहाँ पर करो, लिखने का जगह नहीं है. ये बात रखना कि आपका अगर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, कहाँ पर दिखाओ, जगह तो नहीं है. ठीक है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर CH3 है और उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कुछ है. ठीक है, तो CH3 तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर देगा, यू नो. तो ये जो बॉन्ड ये थोड़ा बहुत यहाँ पर शिफ्ट करेगा, राइट. तो ए वाला प्रोटॉन ज़्यादा शील्डेड होगा, तो इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा. किससे? इस HB से. तो ए का वैल्यू अगर ए कंसिडर करो, इसका वैल्यू HB से कम होगा, राइट. तो यही तो हुआ, ए का वैल्यू HB से कम होगा. ए का वैल्यू 5.7, बी का वैल्यू 6.8. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ब्रॉडबैंड decoupled 13 carbon NMR spectrum, the number of signal appearing for the two pyrene diols A and B. So this is all only respect to POS, plane of symmetry. See, this is a plane of symmetry passing through this, right. For that case, this carbon 1, okay, this is 2, okay, this is 3, okay, this is 4, okay, this is 5, ये भी ठीक है. और यहाँ पर एक 6, 5 है, राइट. 1 2 3 4 5 है. ठीक है, यहाँ पर भी आप ये कर सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि आपका एक्चुअल एरोमेटिक जो क्लाउड है वो तो डिलोकलाइज होगा. तो एरोमेटिक क्लाउड मतलब सभी सिमेट्रिकल है. ठीक है, आप पकड़ सकते हो. तो यहाँ पर अगर हो जाए तो तब क्या होगा, ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला सेम होगा 1, ए वाला 2, 2, ये जो जगह है यहाँ पर 3 है, 3 है. एक हुआ, एक, 2, 2,
3 3, यहाँ पर 4 4। आई थिंक यहाँ पर भी एक और होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक 5 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर 1 2, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 3, देखो प्रोटॉन डिकपल बोला। यहाँ पर एक बात याद रखो, यहाँ पर डिकपल बोला मतलब आपका डिकपल मतलब हाइड्रोजन नहीं कंसिडर किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, राइट। ये बाइसेक्ट किया, इसको आप होलीली ऐसे नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज देयर मस्ट बी सो मेनी बेंजीन इज फुल्ली नॉट delocalized. In some benzene that is more electron density, some benzene less electron density. This question is very much unfamiliar. आपका अगर इसका नॉर्मल टेंडेंसी देखो तो इसका 4 कार्बन 13 होगा, ठीक है, और इसका ज़्यादा होगा, 10 से ज़्यादा होगा। पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं हुआ है, ऑप्शन में 5 और 10 है। तो इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा आपको क्वेश्चन को लेकर चिंता करने का बात है। तो 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, और क्या है, 1 2 3 4, ऐसे बाइसेक्ट किया तो 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, 10 आएगा। इसको हम देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख लेना, आई थिंक यहाँ पर 5 और 10 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो नंबरिंग सिस्टम है, यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 5 होगा। पर यहाँ पर प्रोटॉन डिकपल मतलब आपका यहाँ पर थोड़ा घूम कर आया है, यहाँ पर आई थिंक देयर हाइड्रोजन्स आर नॉट कंसिडर्ड, ओके, आई विल चेक अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th question. Compounds A and B exhibit two singlet, each in the following 1H NMR spectra. Suppose that there must be A, B is given. A, this is A compound, this is a B compound. Okay. And there must be for A, this 2 value is given, for B, there 2 value be given. Okay. 2 value करके दिया हुआ है। तो ये बात याद रखो, ए पर क्या होगा आपका, यहाँ पर एच ए है, यहाँ पर एच बी है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच बी है। ए जो दोनों ग्रुप है इसको आप स्पेयर मान सकते हो, यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री गया है। ओके, देयर OCOCH3 and COOCH3 you can consider as a sphere. Okay, so this HA and this HA same, and this HB and this HB are same. Okay, so on that case remember that आपका बहुत सारा एरोमेटिक प्रोटॉन है। और भी एक बात है, यहाँ पर और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी सेम ग्रुप है, यहाँ पर भी सेम ग्रुप है। तो मतलब ये जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स है वो सेम सिग्नल दिखाएगा, राइट। ओके, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी आपका यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो एरोमेटिक रेंज गिव सेम सिग्नल। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो CH3 है इसका वैल्यू 2.1 होगा। ये जो OCH3 का वैल्यू क्या होगा, 3.9 होगा। OCH3 वैल्यू ऑलवेज बी 3.5 to 4.0 ppm, so B goes to 3.9. okay, and here A goes to 2.1 because only CH3, maybe CO is present with CH3, but this carbonyl never so much making delta value upward.
ऑफ CH3। CH3 का वैल्यू 2.1 जैसा हो सकता है, पर आपका OCH3 का वैल्यू 3.5 से एक्सीड करेगा। ठीक है, अब एरोमेटिक प्रोटॉन देखो, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ये थोड़ा बहुत इस एरोमेटिक रिंग में जा सकता है, पर यहाँ का होल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही कार्बोनिल खींच लेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका कहाँ पर ज़्यादा शिल्लेट हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा शिल्लेट हो रहा है। ठीक है, तो ए वाला कंपाउंड का क्या होगा, प्रोटॉन्स का वैल्यू ज़्यादा कम होगा देन बी। ठीक है, क्योंकि ए जो है ये पूरा खींच रहा है, हाँ ये तो डोनेट कर रहा है, ये तो डोनेट कर सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, anthracic acid on treatment with isoamyl nitrate furnishes a product which displays a strong peak at 76 mass per electron value. Okay, तो इट्स मास स्पेक्ट्रम द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। देखो आपका यहाँ पर मास स्पेक्ट्रम का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप एंथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर जानते हो, आइसोएमाइल नाइट्राइट का स्ट्रक्चर जानते हो, तो आप रिएक्शन करके आइसोएमाइल नाइट्राइट में कुछ नहीं है, आप अगर याद भी नहीं रखो ये याद रखना, आइसोएमाइल नाइट्राइट में आपका एक NO ग्रुप है और वो NO ग्रुप क्या करेगा, एमिन से N2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर एक N2 ग्रुप है, तो ऑब्वियस डिकार्बोक्सिलेशन होगा और N2 रिलीज हो जाएगा। क्या होगा, बेंजाइन होगा, और दो बेंजाइन क्या होगा, रिएक्टिव होगा, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, 2 साइक्ल एडिशन, तो ए वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देयर मस्ट बी नो नीड टू सी द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ओनली रिएक्शन मैकेनिज्म कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आपका सिर्फ देखना एंथैलिक एसिड का बेसिक जो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, एमाइल नाइट्रेट का स्ट्रक्चर ना पता हो, वहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, NO ग्रुप है, ONO, वो क्या कर सकता है वो आपको देखना है कि एमिन से N2 प्लस प्रोड्यूस करेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका N2 प्लस और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही क्या होगा, डिटैच होने का कोशिश करता है, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड का करने का कोशिश करता है डिकार्बोक्सिलेशन, एंड N2 ऑलवेज रिमूव होने का कोशिश करता है। अगर ऐसा मैकेनिज्म हो तो क्या प्रोड्यूस होगा, बेंजाइन होगा। बेंजाइन रिएक्टिव होता है, दोनों एक के साथ दूसरा डाइमर प्रोड्यूस करेगा, तो ये प्रोडक्ट होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, अमोंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देख लो, यहाँ पर भी आपका रिएक्शन करना है और कुछ नहीं। गिगनर रिएजेंट, ये डेल नेगेटिव होगा, वो रिएक्शन करेगा, यहाँ पर O नेगेटिव होगा, OMGBr होगा, OMGBr आप फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर दिया हुआ है, क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड की प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन देगा, तो वहाँ पर OMGBr क्या प्रोड्यूस होगा, OH2 होगा। ठीक है, तो वो OH2 बाहर आ जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा। तो वहाँ पर दो टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है, ये एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन और ये एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। तो आपका मेजर ए होगा। यहाँ पर कितना सारा सिग्नल हो सकता है कार्बन का, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ पर कितना सारा प्रोटॉन होगा, एक होगा। यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, तो ये 1 है, 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 5 है। ठीक है, तो 5 सिग्नल होगा, राइट। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और लास्ट 1 ये 5 है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द माइनर प्रोडक्ट बट इट विल हैव 5 सिग्नल। ओके, नेक्स्ट, here all the carbons are considered. Next question, this 9 option, sigma to sigma star, n to pi star, n to pi star, n to sigma star, pi to pi star are given, and their C bond, CO bond, C double bond O, and C double bond C are given.
Always remember sigma to sigma star goes to CC single bond. There are only sigma and sigma star only given and no बाकी कोई ऑर्बिटल नहीं है. N to sigma star should be C bond O. Why? ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में जा सकता है. नेक्स्ट है N to pi star. Why? बिकॉज ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और कार्बन में कहाँ पर नॉन बॉन्डिंग है, लोन पेयर कहाँ पर है, ऑक्सीजन में है. तो ऑक्सीजन से कार्बन में N2 सिग्मा स्टार हो सकता है. कार्बन से कार्बन ओनली पाई टू पाई स्टार हो सकता है. सिग्मा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार नहीं होगा और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार भी नहीं होगा. तो आपका पाई टू पाई स्टार CC बॉन्ड होगा बिकॉज ओनली देयर पाई और पाई स्टार ही अवेलेबल है. सिग्मा टू सिग्मा स्टार यहाँ पर हो सकता है, पर पाई टू पाई स्टार हम बोल सकेंगे. क्यों? क्योंकि ऑप्शन में एक ही हम कंसिडर करेंगे, राइट. ऑलरेडी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ओनली पॉसिबल फॉर CC बॉन्ड. CC बॉन्ड में तो कोई पाई पाई और N पाई नहीं है, तो ओनली CC सिग्मा टू सिग्मा स्टार ओनली पॉसिबल फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. और कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन में क्या होगा, N2 सिग्मा स्टार. वाई? बिकॉज आपका ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में जा सकता है. कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होगा वहाँ पर कोई नॉन बॉन्डिंग नहीं है, पाई है, तो पाई टू पाई स्टार होगा. और कार्बन डबल बॉन्ड वो जो है ऑक्सीजन में नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार हो सकता है. तो यहाँ पर कौन सा है, देखो A फॉर 1, B फॉर 2, C फॉर 3. ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. रिमेंबर दैट देयर मस्ट बी cis trans एंड दिस सेम पोजिशन में Br और Cl दिया हुआ है. ये बात याद रखना. आपका अगर J वैल्यू होगा, ये तो सब J वैल्यू है, तो J वैल्यू ऑलवेज सिस ट्रांस के टाइम में क्या होगा, J वैल्यू प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होगा. J प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल ट्रांस में ज़्यादा होता है. तो बॉन्ड एंगल अगर ट्रांस में ज़्यादा हो तो ट्रांस में ही आपका J का वैल्यू भी ज़्यादा होगा. ठीक है. तो अगर आप 10 Hz और 15 Hz अगर कंसिडर करो तो ट्रांस का 15 Hz होगा और सिस का 10 Hz होगा. और ये जो वैल्यू होता है, एक ही कार्बन में 2 हेलोजन होता है या 2 सेम ग्रुप होता है, उसका वैल्यू सिस और ट्रांस से ज़्यादातर कम होता है. ठीक है. उसका वैल्यू 1 से 2 Hz होता है. ठीक है. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, याद रखना. ओके. और ये जो है ये आपका होमवर्क है. आई ऑलरेडी गिव द हिंट दैट इज एल्डिहाइड कीटोन और एसिड का वैल्यू 1700 to 1750 होता है सेंटीमीटर इनवर्स. और याद रखना अगर कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है उसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो नॉर्मल एल्डिहाइड होता है उससे कम होता है. क्यों होता है? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये थोड़ा शिफ्टेड होता है, इसलिए इसका न्यू वैल्यू लेस होता है देन नॉर्मल कार्बोनिल या एल्डिहाइड. ठीक है. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फ्रीक्वेंसी वैल्यू नॉर्मल एल्डिहाइड वैल्यू से कम होता है. और नेक्स्ट वन, अगर एसिड क्लोराइड हो कार्बोनिल उसके बाद Cl हो, उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1790 to 1800 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, क्योंकि क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट की वजह से कार्बोनिल को स्ट्रेंथन करता है. ठीक है. और एजाइड का वैल्यू C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा अगर कहाँ पर भी या साइनाइड हो तो वहाँ का वैल्यू 2200 सेंटीमीटर इनवर्स होता है. साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N का वैल्यू 2200 सेंटीमीटर इनवर्स होता है. तो अब मैच करना आपके हाथ में है. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट. ओके. और ये बात रखना ना, इस 10 का जो नंबर होगा याद रखना, अगर एक ही कार्बन में 2 ग्रुप होगा उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 Hz होता है. और सिस और ट्रांस जो होता है वहाँ पर आपका J वैल्यू मतलब Hz होता है, राइट. और डेल्टा वैल्यू ppm होता है. तो J वैल्यू बॉन्ड एंगल के साथ प्रोपोर्शनल होता है. कहाँ पर? इन सिस ट्रांस एंड Z और E में. तो बॉन्ड एंगल ट्रांस का ज़्यादा होता है, इसलिए J का वैल्यू भी ज़्यादा होता है. अप्रोक्सीमेट रेंज 15 to 16 Hz होता है. ट्रांस का सिस का रेंज 10 अप्रोक्सीमेटली हो ही जाता है. ठीक है. तो थैंक यू. थैंक यू.